آغاز کریں گے سب سے بڑی خبر کے ساتھ۔ سیاسی جماعتوں کو جن حلقوں پر تحفظات ہیں وہاں تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے بڑی پیشکش کر دی۔ شاندار کامیابی پر بنی گالہ میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ وزیراعظم ہاؤس کو تعلیمی ادارے کے طور پر استعمال کریں گے، سارے گورنر ہاؤسز عوام کے استعمال کے لیے بنائیں گے۔ 22 سال کی جدوجہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں احتساب وزیروں سے شروع ہوگا۔ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، تمام پالیسیاں غریب طبقے کے لیے ہوں گی۔ جتنے ذاتی حملے کیے گئے سب کو بھول چکا مثال بن کر دکھائیں گے۔ ایسے ادارے قائم کریں گے جو گورننس ٹھیک کریں۔ میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، 22 سال کی سٹرگل مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں اس خواب کو پورا کر سکوں۔ ایک تاریخی الیکشن ہوا پاکستان میں، اس الیکشن کے اندر لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اس الیکشن کے اندر دہشت گردی ہوئی۔ میں آج خاص طور پہ بلوچستان کے لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں۔ جس طرح کی وہاں دہشت گردی ہوئی، اس کے باوجود جس طرح بلوچستان کے لوگ نکلے ہیں، میں آج سارے پاکستان کی طرف سے بلوچستان کے لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں۔ جس طرح بوڑھے معذور گرمی کی انتہا میں نکلے ووٹ دینے کے لیے، اوورسیز پاکستانی جس طرح آئے، ان ساروں کو آج داد اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری جمہوریت کو مضبوط کیا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ایک وہ ملک بنے، میرے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے جو سوچا تھا پاکستان میں۔ عمران خان نے اپنی خارجہ پالیسی واضح کر دی۔ عام انتخابات میں جیت کے بعد اپنے پالیسی خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمسایہ ممالک سے تعلقات بہتر بنائیں گے۔ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے۔ ایران سے بہتر تعلقات قائم کریں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کریں گے۔ امریکہ سے برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس ایک وہ ملک جو کہ جس کی آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے، مجھے شرم آئے گی کہ میں جاؤ کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہوں گا۔ ہمارا اس وقت فورن پالیسی میں بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر کسی ملک کو اس وقت امن کی ضرورت ہے، اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، وہ پاکستان ہے۔ ہمارا اکنامک کرائسس اس وقت ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نیبرز ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں تاکہ ہم کانسنٹریٹ کریں اپنی نیشن بلڈنگ میں۔ افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے، اس کے بعد جو ملک چاہتا ہے افغانستان میں امن، وہ پاکستان ہے۔ افغانستان میں امن ہوگا، پاکستان میں امن ہوگا۔ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ایران سے ہم بالکل اپنے تعلقات اور بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عربیہ ہمارا سب سے ایک ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ ہندوستان کے میڈیا نے جس طرح مجھے پورٹرے کیا، ایسے لگا جیسے میں کوئی بالی ووڈ فلم کا ویلن ہوں۔ عمران خان نے کسی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ نہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں احتساب مجھ سے شروع ہوگا۔ انہوں نے مخالفین کی جانب سے دھاندلی کی شکایت پر تعاون کا بھی اعلان کیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں سینئر رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ عمران خان نے دھاندلی کی شکایت پر تعاون کا اعلان کیا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ اگر کوئی دھاندلی کی شکایت کر رہا ہے یا دوسری پارٹیز کر رہی ہیں تو میں اس کے اوپر تحقیقات کروانے کو تیار ہوں۔ بھائی تم تو خود حصہ ہو اس پری پول ریجن کا، تم خود جو ہے وہ ایجنسیز کے ساتھ مل کے تم اپنے کینڈیڈیٹ کی لسٹ تیار کرتے رہے ہو، ان کے کہنے پہ ٹکٹ دیتے رہے ہو، ان کے جو ہے وہ لوگوں الیکٹیبلز کو توڑ کے تمہارے پاس لاتے رہے ہیں، تم ان کو اپنی پارٹی میں شامل کرتے رہے ہو، ان کو پٹا پہناتے رہے ہو۔ تم تو یہ پری پول ریجن جو ہے، جو ایک پارٹی اور ایک لیڈر کو سائیڈ لائن کرنے کی، تم تو خود اس کا حصہ ہو اور مل کے کر رہے ہو، اور پچھلے 1.5 سال سے اس جو ہے وہ پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہو۔ تو اب آپ سے ان سے کیا تحقیقات ہم نے کروانی ہے؟ اور یہ پری پول ریگنگ جو ہے یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک یہی ہے کہ ہمارے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ ریاست کا وہ پیسہ جو دہشت گردی کے خلاف جو ہے اس ملک میں امن کے لیے خرچ ہونا چاہیے، وہ جو ہے وہ الیکشن کمپین پہ خرچ ہوا ہے۔ لوگوں کو پیسے دیے گئے ہیں، لوگوں کی کمپین کروائی گئی ہے، ہمارے لوگ جو کمپین کر رہے تھے ان کو روکا گیا ہے، ان کو دھمکایا گیا ہے، لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے۔ یہ سارا کچھ نون لیگ رہنما رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اسی پر بات کرتے ہیں سینیٹر مشاہد اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مشاہد اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔
پہلے تو عمران خان نے جو آج تقریر کی ہے اس پر آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گا. میں جو سینز دیکھ اس طرح کی تقریریں وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے گورنر ہاؤس بند کرائے تھے فلاں نے، لیکن سب سے زیادہ ان کی گورنر ہاؤسز اور چیف منسٹر ہاؤس کا بل جو ہے وہ 20 کروڑ سے زیادہ کا چائے کا بل. یہ ساری کہانیاں ہیں. ناتھیا گلی بھی وہ رہتے رہے، جب وہ کریں گے وہ اعلان نہ کریں، ان کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا. اعلانات سے کچھ نہیں ہوتا، جب وہ عمل کر کے عمل جو ہے ان کا پچھلے 5 سال کا KPK میں آج کی تقریر جو ہے ان کی اس کے برعکس ہے. وہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کرپشن کا KPK میں ختم کر دیا، ادارے بند کر دیا. آپ نے کسی کرپٹ کو پکڑا، آپ نے کرپٹ لوگوں کو وزیر بنایا اپنے ساتھ. تو اب ان باتوں پہ کون توجہ دیتا؟ اچھا مشاہد اللہ صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت بنائے گی، اور اگر حکومت بنانے کی خواہش ہے تو اس کے لیے کیا اب کوششیں کی جا رہی ہیں آپ کی جانب سے؟ آپ لوگ ہماری طرف فیلڈ ہوئے تو ہم بنا لیں گے، اگر ہماری طرف نہ ہوئے تو پھر نہیں بنے گی، کیونکہ برابر ہی ہے نا تقریباً، کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے. تو اب وہ ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے. اب میں کیونکہ یہاں کراچی میں ہوں، آج میٹنگ میں مجھے بلایا تھا لاہور میں، وہاں نہیں گیا، تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے. لیکن مطلب اندازہ یہی ہے کہ وہ جو آزاد لوگوں کی حیثیت وہاں پہ بڑھ گئی ہے، بارگیننگ پوزیشن، اور ان کا بھاؤ بڑھ گیا بلکہ. تو اب وہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں کس کے ساتھ نہیں ہوتے، یہ جو ہے جی بہت شکریہ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب وقت دینے کے لیے. ادھر تحریک انصاف نے بھی پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے کوششیں تیز کر دی. عمران خان نے شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین اور شیخ رشید کو آزاد امیدواروں کی حمایت حاصل کرنے کا ٹاسک دے دیا. اسلام آباد سے شہباز احمد کی رپورٹ. مرکز اور خیبر پختونخوا کے بعد عمران خان کی نظریں پنجاب پر جم گئیں. عمران خان کی زیر صدارت بنی گالہ میں اہم اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ PTI پنجاب میں حکومت بنانے کی پوری کوشش کرے گی. ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان نے شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین اور شیخ رشید کو ٹاسک دیا ہے کہ وہ آزاد امیدواروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان سے بات کریں. مسلم لیگ کاف پہلے ہی پنجاب میں PTI کی حمایت کر چکی ہے. ذرائع کے مطابق تمام آزاد امیدواروں نے تحریک انصاف کا ساتھ دیا تو وہ پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ شہباز احمد، نیوز اسلام آباد. تحریک انصاف کی کامیابی پر بنی گالہ میں مبارکباد دینے آنے والوں کا تانتا بن گیا. حکومت سازی کے لیے عمران خان کا پارٹی سے مشاورت کا عمل بھی جاری ہے. عمران خان سے سابق کرکٹر، سینئر رہنماؤں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ملنے پہنچے. اس وقت بنی گالہ کی صورتحال کیا ہے جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے نمائندہ نیوز شہباز احمد سے. شہباز، بنی گالہ کے باہر اور اندر ماحول کیا ہے؟ جی بالکل، اس وقت بنی گالہ جو ہے وہ توجہ کا بڑا مرکز بنا ہوا ہے. تحریک انصاف کی واضح کامیابی کے بعد آج سارا دن جو ہے وہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما آتے رہے. عمران خان سے ملاقاتیں ہوئیں. اس کے علاوہ عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس بھی ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب، KP اور مرکز میں تحریک انصاف حکومت بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی. اس کے علاوہ سابق ٹیسٹ کرکٹر وسیم اکرم اور اس کے علاوہ شعیب اختر نے عمران خان سے ملاقات کی، نئی خواہشات کا اظہار کیا اور عمران خان کا مبارکباد دی. اس کے علاوہ مختلف شعبوں تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان کی ابھی بھی آمد کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. بنی گالہ کے باہر سارا دن آج کارکنان موجود رہے. ان کی عمران خان سے ملنے کی خواہش سے پوری نہ ہو سکی، لیکن جو دیگر پارٹی رہنما تھے وہ آ کر جو ہے ان سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے، میڈیا ٹاک بھی کرتے رہے. اور ابھی چونکہ صورتحال مکمل واضح نہیں ہوئی کہ الیکشن کمیشن کا واضح رزلٹ نہیں ہے تو سلسلہ جاری رہے گا. اپڈیٹ کر رہے تھے. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئی. PTI کا سونامی سب کو بہا لے گیا. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق قومی اسمبلی میں 118 نشستوں پر PTI آگے. نون لیگ کو 60-40 پر پیپلز پارٹی کو برتری. 20 آزاد امیدواروں MMA کو 11 نشستوں پر برتری حاصل ہے. کاف لیگ اب تک 4 سیٹیں حاصل کر سکی ہے. MKM پاکستان کو 5، BNP مینگل 5، عوامی مسلم لیگ اور ANP کو 1-1 نشست پر برتری حاصل ہے. باتوں جگا لے خود کو، خود میں آگ لگا لے کچھ تو. ملک جلا ہے تیری خاطر، تو یہ آگ بجھا دے اب تو. عام انتخابات 2018، کپتان ٹھہرے مرد میدان. تبدیلی ہم سے، تبدیلی ہم ہی لائیں گے، تبدیلی ہم سے. پلے کے آگے سب فیل،
शेर ढेर, तीर भी जेर, पतंग उड़ने में नाकाम, जीप के पहिए भी हो गए जाम। तब्दीली हमसे, तब्दीली हम ही आएंगे, तब्दीली पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन गई तहरीक इंसाफ। से निकलने का वक्त है। कौमी असम्बली में पीटीआई का पहला नंबर, रनर अप मुस्लिम लीग नून करार, पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। आजाद उम्मीदवारों ने भी कम ही सीटें पाई। एमएमए का इत्तेहाद भी बेजरर रहा। काफ लीग को भी रुसवाई का सामना। अवामी मुस्लिम लीग और एएनपी भी अक़लियत में है। घर मिट जाएगा, सब लुट जाएगा। सूबों में भी सियासी जमातों के दरमियान कांटे का मुकाबला। पंजाब में नून लीग को जबरदस्त झटका लग गया। हुक्मरानी ख्वाब ही बनता जा रहा है। पंजाब असेंबली की 114 नशिस्तें, नून लीग तो 113 सीटें तहरीक इंसाफ ले उड़ी और अभी मजीद नशिस्तों के नताइज आना बाकी हैं। सिंध में एक बार फिर जरदारी सब पर भारी पड़ गए। पीपल्स पार्टी ने सूबाई असेंबली की 74 सीटें अपने नाम कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने तारीख रकम कर दी। बल्ले ने सबको रोन दिया। बलोचिस्तान में अवामी पार्टी ने 12 नशिस्तें जीतकर सबको मात दे दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम की नाकामी के अब पुराने निजाम के तहत रिटर्निंग अफसरान से नताइज की वसूली जारी है। इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम में मौजूद हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी हैं, उनसे पूछेंगे। शाकिर, बताएगा कितने फीसद नताइज आ चुके हैं और नताइज के तहत पार्टी पोजीशंस क्या हैं? इंतखाबात को हुए अब दूसरा दिन है, लेकिन इंतखाबात के नताइज का अभी सबको इंतजार है। अभी तक जो लेटेस्ट पोजीशन है इलेक्शन कमीशन में 270 इंतखाबी हल्के थे कौमी असम्बली के, उसमें से इलेक्शन कमीशन को 142 हल्कों के नताइज मौसूल हो चुके हैं। और इसी तरह अगर सूबाई असम्बली की बात की जाए तो पंजाब के 208 के, सिंध से 63 और केपीके से 83 नताइज उनको मौसूल हो चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान की 21 नशिस्तों के हतमी नताइज इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं। पार्टी पोजीशन की अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और वफाक में इस वक्त लीड कर रही है। रिजल्ट की यहाँ आमद का सिलसिला यहाँ किस तरह कंपाइल हो रहा है, कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ मैनुअल सिस्टम के जरिए तमाम रिजल्ट यहाँ पहुँच रहा है। फैक्स के जरिए आरटीएस नाकामी के बाद इलेक्शन कमीशन वापस मैनुअल सिस्टम पे गया और यहाँ तमाम रिटर्निंग ऑफिसर फैक्स कर रहे हैं। फॉर्म 47 यहाँ इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन उसको लेकर कंपाइल करके उसे वेबसाइट पे भी आवेजा कर रहा है और मीडिया से भी उसको शेयर कर रहा है। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में रिजल्ट के हवाले से ये पोजीशन है। जी शाकिर बासी हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन नताइज पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब करने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ के बेटों और खानदान के दीगर अफराद के हमरा डियाला जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात में इंतखाबी नताइज और आइंदा के सियासी लाहेअमल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ कहते हैं नताइज चोरी किए गए हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से किसी को खेलने नहीं देंगे। उन्होंने हिदायत की कि पार्टी क़यादत अवाम के हक में डाका मारने वालों को बेनकाब करे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का लाहौर में अहम मुशावरती इजलास जारी है। शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में पंजाब में हुकूमत साजी या अपोजिशन में बैठने, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और दीगर अहम अमूर पर मुशावरत हुई है। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिम नसीर से। आसिम, बताइएगा मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं थोड़ी तस्दीक कर दूँ कि ये इजलास जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने नाज़रीन को बताया सारी रहा, जिसके बारे में इजलास में नासिर हमजा शहबाज, शाहिद खाका अब्बासी और कर्नल सिंह, मोहम्मद जुबैर, परवेज रशीद, एहसन इकबाल और इस्लाम पार्टी के अहम रहनुमा इसमें शरीक थे। इजलास के अंदर ज़राए का ये बताना है कि जो गुज़िश्ता रोज जो इंतखाबी धांधली हुई है उसके ऊपर तफसीली बहस की गई और तमाम मुल्कों से पाकिस्तान में से जहाँ जहाँ शिकायत आई उनके हवाले पेश की गई, जिस पर फैसला किया गया कि कल एक पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें जमातों के सामने भी रखेगी। जी बहुत शुक्रिया आसिम नसीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इलेक्शन 2018 के नताइज में ताखीर क्यों की जा रही है? नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीएसपी समेत दीगर सियासी जमातों ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की वजाहत भी मानने से इनकार कर दिया है। अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। इलेक्शन 2018 के नताइज में ताखीर क्यों की जा रही है? नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीएसपी समेत दीगर सियासी जमातों ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की वजाहत मानने से इनकार कर दिया है।
RTS सिस्टम ने तवक्को के मुताबिक काम नहीं किया। पोलिंग अफसरान को रिटर्निंग अफसरान तक पहुंचने में भी देर हुई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब नताइज में ताखीर पर वजाहतें देने लगे। कहते हैं दुनिया भर में नताइज के ऐलान में वक्त लगता है। 2013 के इलेक्शन में 3 दिन तक नताइज आते रहे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि 82% नताइज आ चुके। फॉर्म 45 की कॉपियां कानून के मुताबिक दें, जिन्हें नहीं मिली उन्हें जल्द मिल जाएंगी। बाबर याकूब के मुताबिक धांधली से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो पुरानी है। एक्यूरेट इलेक्शन आपके सामने लेके खड़े हैं। मैं देर के हवाले से फिर कहना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर दुनिया का 5वां बड़ा इलेक्शन, उसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। 24 घंटे के अंदर जो दुनिया की बड़ी बड़ी जमहूरियतें हैं वो अपने इलेक्शन कई दिन कई हफ्ते लगा देती हैं। कल जो ट्रांसमिशन, जो इलेक्शन, जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के हवाले से जो उसमें उसको जैसे कहते हैं, जिस तरीके से हम समझते थे कि ये काम करेगा, उस तरह से उसने नहीं किया। जो चीज़ नहीं चल सकी उसको तस्लीम करने में भी हमें कोई यार नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम जिसको छुपाएं या जिसके ऊपर हम पर्दापोशी करने की कोशिश करेंगे। जो रिजल्ट हमें रिसीव हुए हैं वो 82% हैं। जो रिटर्निंग ऑफिसर्स फील्ड में अनाउंस कर चुके हैं वो 90% हैं। इलेक्शन रिजल्ट करने का, अनाउंस करने का जो प्रोसेस है, ये इसी तरह हमेशा रिजल्ट किया जाता है। RTS का रिजल्ट इन एनी केस वो उसकी कोई वो कानूनी उस तरीके से हैसियत नहीं थी। वो एक उसकी यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद जोशीला कप्तान। जोशीलापन कप्तान की पहचान मैदान क्रिकेट का हो या सियासत, गर्जे भी बरसे भी फील्डर्स पर, कभी हरीफों पर, मगर इक्तदार करीब आया तो तलखी शाइस्तगी में बदल गई, लहजा नरम हो गया। जोशीला कप्तान, क्रिकेट का एंग्री यंग मैन। कभी पार्टनर पर बरसे, कभी फील्डर्स को गोलियां। मैदान बदल गया मगर तेवर नहीं बदले। सियासी अखाड़े में तो खूब गरज चमक दिखाई। नवाज शरीफ और बुज़दिल और बेशरम, जो मर्जी कर लो। हरीफों को खूब ललकारा। तुम्हें गिरबान से पकड़ूंगा। पहले तो कोर्ट में एक तेज बॉलर से पंचम लगाऊंगा, उसके बाद जेल में डालूंगा तुम्हें। कभी अपनों पर ही बरस पड़े। नहीं, अभी नहीं, बाद में होगा। चुपके सवालात पर आपे से बाहर। ये क्या सवाल है? अब मैं इसका क्या जवाब दूं? यानी ये इतना स्टूपिड क्वेश्चन है और इसकी स्टूपिड ही आंसर हो सकती है। मगर कुर्सी दिखते ही लहजा बदल गया, यानी तब्दीली आ गई है। इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे ताकत दे कि जो मैंने आपसे वादे किए हैं वो मैं पूरे करूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान की तकरीर इंटरनेशनल मीडिया में भी खूब सुर्खियों में रही। भारतीय अदाकार ऋषि कपूर भी कप्तान की स्पीच की तारीफ किए बिना ना रह सके। इमरान खान की विक्ट्री स्पीच इंटरनेशनल मीडिया में भी खूब सरगर्म रही। CNN, BBC ने इमरान खान की स्पीच को बराहे रास्त दिखाया। हिंदुस्तान टाइम्स में भी कप्तान सुर्खियों में रहे। क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट क्रिकइन्फो में भी इमरान खान की जीत के चर्चे रहे। भारतीय अदाकार ऋषि कपूर ने इमरान खान की स्पीच की खूब तारीफ की। वेलकम बैक। ऐसी धांधली पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। MKM ने भी नताइज पर एतराजात उठा दिए। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पहले हल्का बंदियों में तब्दीली कराई गई, फिर इलेक्शन के रोज पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग बूथ से निकाला गया। जमहूरियत के लिए इमरान खान को मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। मोटी बहुत सारी शिकायतें थी जिससे हम आगाह करते रहे, लेकिन असल हाथ दिखाया गया है। शाम के 6 बजे के बाद जब पोलिंग स्टेशन से MQM के पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया, किसी को मुकम्मल तौर पे निकाल दिया गया, कहीं पे चंद घंटों के लिए निकाला गया,
और यही वो वक्फा था जिससे नतीजा तक। शेख रशीद कहते हैं कौम ने वोट को इज्जत दे दी, जो पूछते थे मुझे क्यों निकाला, कौम ने उनको इलेक्शन में जवाब दे दिया। वो बनीगाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। को लूटा, रुसवा किया। अब नवाज शरीफ साहब बोले ना, ये कहते हैं मुझे क्यों निकाला, कौम ने बताया कि इसलिए निकाला कि तुम पनामा के डाकू हो, तुमने कौम को लूटा, रुसवा किया और वोट को इज्जत दो। लोगों ने वोट को इज्जत दी है शहबाज शरीफ साहब। अब 90 के जाविये से कौम के फैसले को कान पकड़ कर तस्लीम करो। नवाज शरीफ का एक ही नारा था कि वोट को इज्जत दो, कौम ने यकतरफा फैसला। इलेक्शन नताइज ने बड़े बड़े सियासतदानों को पार्लियामेंट में एंट्री से महरूम कर दिया। नाकाबिले शिकस्त समझे जाने वाले कई सियासतदान अपसेट शिकस्त से दो चार हुए। कौन कहां से हारा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बड़े बड़े नाम हो गए नाकाम। इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी 2 सीटों पर हारे। नाकाबिले शिकस्त चौधरी निसार का जीप दौड़ाने का प्लान फ्लॉप रहा। शहबाज शरीफ सवात डेरा गाजी खान वालों का एतमाद हासिल न कर सके। सुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी की एक न चली, आबिद शेर अली भी ढेर। सियालकोट वालों ने फिरदौस आशिक अवान को शिकस्त का मजा चिखाया। जंग से अहमद लुधियानवी को गुलाम बीबी भरवाना ने आगे न होने दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मुत्तहिदा मजलिस अमल की क़यादत फ्लॉप रही। सिराजुल हक लोअर दीर से हाथ धो बैठे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी हार का मजा चख लिया। जुल्फिकार मिर्जा की एक न चली। असफंदियार वली और हाजी गुलाम अहमद बलोर भी सीट गंवा बैठे। सवात से अमीर मकाम को नाकामी का सामना करना पड़ा। क्वेटा में महमूद खान अचकजई, साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी और सरफराज बुक्टी हार गए। लाहौर में इलेक्शन कमीशन के इंतजामात का पोल खुल गया। इंतखाबात के दौरान इस्तेमाल होने वाले बैलेट बॉक्स के ढक्कनों को दफ्तर के बाहर फेंक दिया गया। सड़क पर पड़े ढक्कनों पर सरकारी सील भी मौजूद है। न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे मोहसिन दानिश ने इस हवाले से क्या बताया है, जानते हैं। उस डेर में मैं मौजूद हूँ जहाँ पे जो है बैलेट बॉक्सेस के ढक्कन और बैलेट बॉक्सेस को जो है यहाँ पे बखेरा हुआ है। जो बैलेट बॉक्सेस कल तक जो है इस तरह से अमानत थे लोगों की कि लोगों ने जो है इसमें वोट कास्ट की, अपने वोट डाले, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। कल तक जो है जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो भी इनकी जिम्मेदारी का जो है वो हलफ उठाए हुए थे, इनकी जो है वो देखभाल कर रहे थे। उसके अलावा जो है कल की अगर अहमियत की बात की जाए तो सियासतदानों की भी यकीनन इनके साथ जज्बात जुड़े थे कि इनमें जो है लोगों के किए हुए वोट कास्ट जो है उनकी गिनती हुई। तो उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैलेट बॉक्सेस और उनके जो ढक्कन है उनके ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे सड़क के दोनों तरफ जो है ये बैलेट बॉक्सेस और उनके ढक्कन ऐसे ही जो है बिखरे पड़े हैं। ग्रीन और वाइट इनका कलर है। आप 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बढ़तरी पर खिलाड़ियों की जानिब से जीत की खुशी में पुरजोश जश्न मनाया जा रहा है। रुख करते हैं कराची इंसाफ हाउस का, जहां खिलाड़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है और कामरान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। कामरान बताइएगा यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जीत का जश्न मनाया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में। 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बढ़तरी पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है और मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया जा रहा है और आप मनाजिर देख सकते हैं कराची इंसाफ हाउस के, जहाँ पर खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ख़ातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी जानिब से जश्न मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है इस जीत को, इस विक्ट्री को। और ये देख सकते हैं आपके मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, पार्टी तराने भी यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। कामरान बताइएगा यहाँ पर क्या मनाजिर है, क्या समा है? कामरान सुहेल से इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे और 2018 के आम इंतखाबात में नताइज जैसे जैसे क्लियर हो रहे हैं, सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है और इसी की खुशी में खिलाड़ियों की जानिब से खुशी भी मनाई जा रही है, जश्न भी मनाया जा रहा है। कराची इंसाफ हाउस से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन 2018 में वाज़ेह बढ़तरी हासिल करने के बाद कराची से खैबर तक मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई कारकुनान खूब जश्न मना रहे हैं। मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं और पार्टी तरानों पर खूब रक्स किया जा रहा है। पार्टी की बढ़तरी की खबरें आई तो मुल्क भर में खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए और वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगाए।
इलेक्शन में वाज़े अक्सरियत से फतह, कराची से खैबर तक खिलाड़ियों का जश्न। शहर शहर मिठाइयां तकसीम, रैलियां कप्तान के हक में नारे, खिलाड़ियों का ढोल की थाप पर रक्स। NA-53 में कप्तान की कामयाबी पर खिलाड़ियों की जानिब से आतिशबाजी का मुजाहिरा। पेशावर में बल्ला चलने के बाद PTI कारकुनों की हवाई फायरिंग और हल्ला गुल्ला। लाहौर में PTI कारकुनान ने रैलियां निकाली, मुख्तलिफ मुकामात पर आतिशबाजी का मुजाहिरा। ईसा खेल में बबली खान की जीत पर इरफान रजा शाह की क़यादत में रैली निकाली गई। मर्दान में भी कारकुनान ने फतह का जश्न मनाया। सांगला हिल में कामयाब उम्मीदवारों की रैली, मुल्तान में कारकुनान का जोश व खरोश ईदनी था। कप्तान की जीत पर खिलाड़ियों का खैर मकदम। शाहिद आफरीदी ने कहा कि PTI और इमरान खान की जीत तारीखी कामयाबी है, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। कप्तान की जीत, खिलाड़ियों का खैर मकदम। शाहिद आफरीदी ने कहा PTI और इमरान खान की जीत तारीखी कामयाबी है, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। शोएब अख्तर का कहना है कप्तान की जीत 22 साला मेहनत का नतीजा है, आपने कभी हार नहीं मानी। मोहम्मद हफीज ने कहा कप्तान आपने कर दिखाया, इंशाअल्लाह बनेगा नया पाकिस्तान। अहमद शहजाद ने कहा बरसों की मेहनत रंग ले आई। भारतीय बोर्ड के ओहदेदार राजीव शुक्ला ने भी इमरान खान को मुबारकबाद दी। और अब दीगर अहम खबरें टॉप 5 में। इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने साबिक शोहर को पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दे दी। अपने ट्वीट में उनका कहना है साल की बेकदरी, मुश्किलात और कुर्बानियों के बाद मेरे बेटों के वालिद पाकिस्तान के नए वजीर आज़म बनने जा रहे हैं। आयशा गुल अली को तहरीक इंसाफ से अलहदा होना महंगा पड़ गया। मुनहरिफ रहनुमा को हालिया इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, चारों हलकों से शिकस्त खा गयी। इलेक्शन ड्यूटी के दौरान गाड़ी हादसा में पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। DGI SPR का कहना है फर्ज की राह में दी गई कुर्बानी से अजीम कुर्बानी कोई नहीं। कोयटा धमाके का मुकदमा थाना CTD में सब इंस्पेक्टर खालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमा 780A और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज किया गया। खुदकुश हमले में 31 अफराद जाँ बहक हुए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आम इंतखाबात के नताइज का मुस्बत असर रहा। कारोबारी सरगर्मियों में तेजी, आगाज 767 पॉइंट्स इजाफे से हुआ। 100 इंडेक्स में 450 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश सियालकोट और कम अज कम मियांवाली में हुई। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई की है। बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहने का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है। जिला कपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में फायरिंग करके मजीद एक मासूम कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। शहादतों के खिलाफ एहतजाज रोकने के लिए वादी भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाता है। मोदी सरकार की बेलगाम फौज निहत्ते कश्मीरियों पर नाम नेहाज सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजालिम ढा रही है। काबिज भारतीय फोर्सेस मासूम कश्मीरियों को घर घर तलाशी के दौरान खून रेज कार्रवाइयां कर रही है। जिला इस्लामाबाद में कश्मीरी नौजवानों की शहादत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मासूम कश्मीरी भारतीय फौज के मजालिम के सामने हौसले बुलंद रखे हुए हैं। अहम खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाजत दें और आप देखें चीन में शुतुरमुर्ग की दौड़ें।